Hello and welcome to Adarsh GS Lab. After a long period of time, getting two setbacks in UPPSC examinations. One is UPPSC 2024 mains, and after that ROARO mains. I am coming back with a new series of NCERT in which we are going to cover all NCERT from class 9 to class 12th. So this is the first video of this series in which we are going to talk about the class 9th NCERT chapter 1, that is India, size and location. So without wasting more time, now let's get started. So before moving into the core topic of this chapter, first we need to understand some of the basic concepts of the geography which are quite important, and it will be helpful to understand the whole chapters and the whole concepts of this particular subject. Before going into the core of these chapters, we will have to know the some basic concepts of the geography and which will be helpful to understand the core topics of this particular subject as well. So first we will start from this figure. As you might have seen this figure a lot, but here one thing is the very important, that is, as we know that this is the imaginary line called the equator, and equator is passing through 0 degrees and 0 degree, and this is the tropic of Cancer, which is the passing through 23 half. This particular region yani in the northern hemisphere, and this one is the Arctic circle passing through the 66 point half north. So question is that, first thing, what are latitudes, and second thing is the why they are measured in degree. It means if I am measuring equator in the 0 degree, so what are these degrees? So the first we need to understand that what are latitudes, and second thing is that why latitudes are measured in degree. These two terms I will have to make it clear here. So it can be cleared through this figure. To understand latitudes, what are latitudes and why they are measured in the degree, we have to just bisect the one globe vertically, and if we divide the one globe vertically, then we will get a figure like this. So in this figure, we can say that this is the half figure of the globe, and this line is called equator. Why? Because this divides the whole globe into two parts. One is the northern hemisphere and the second one is the southern hemisphere. So if from the center to the equator, if we measure the distance of these two lines, then it will be the 0. That's why the degree of equator is 0. So just having the reference of this equator, we can measure the some other points as well. For example, here we can measure this is the 15 degree, this is the 30 degree, this is the 40 degree, and keep remember that these degrees are measured from the center of the earth, and on the surface of the earth we have to write only the degrees in which that is being made from the center of the earth. So 15 degrees, so this latitudes will be called the 15-degree north, and this is the 30-degree north latitudes, and this is the 45-degree north latitudes. Same thing is also happening in the southern hemisphere. If you move from the 0 degree to the 15 degree, this will be called the 15 degree, and now this is the 30, 40, 60, 90. So here one thing is the clear that why latitudes are measured in the degrees. So we just make it clear here. So, but if we talk about the definition of the latitude, so how it can be defined? It can be defined like this. What are latitudes? So, latitudes basically are the angular distance from the equator. ये जो इक्वेटर की लाइन है, उस इक्वेटर के लाइन से जो एंगुलर डिस्टेंस ड्रा किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और उनको अर्थ के सरफेस पे हम डिग्रीज में डिनोट करते हैं. So here it is the clear about the latitude, and the same process is the also taking place with the longitudes. What are longitudes basically? So for to understand the longitudes, so we divide the globe into the horizontally two parts. So if we divide it horizontally into the two parts, then the figure will be like this, and this is
the prime meridian. Why this is the prime meridian? Because it divides the globe into the two parts. This is the western hemisphere and this one is the eastern hemisphere. So if the having the reference point of the prime meridian, if we measure from here the degrees, this is the 15 degree, this is 30 degree, this is the 40 degree, 60 degree, 70, 90, and if we calculate on this on the surface of the earth, so it will be called the degrees are the 15 degree latitudes, 30 degree latitudes, 45 degree latitude, 60 degree latitude, sorry, longitudes. So these are the longitudes on the surface of the earth. So here we have um, uh, here we have understood very well that the y latitudes and the longitudes are measured in the degrees and their definitions as well. So similarly, the longitudes can be defined as the angular distance from the prime meridian, from the prime meridian. So here it is the clear that about latitudes and longitudes. One thing is very important here that the some latitudes are the quite important. One is the equator. This is the very important. After that, the Tropic of Cancer, Arctic Circle, even Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. So what type of the questions are being asked from this area? That is the quite important to know about it. Otherwise, this topic is rusted, no use of it. So first thing is that we have to understand it very well that the which countries are located on the equator. First type of the questions is also asked here. Similarly, the which countries are located on the Tropic of Cancer, Arctic Circle, Tropic of Capricorn, and Antarctic Circle. So what you have to do basically here, make a list having a world map and make a list that the which countries are located on the these particular latitudes. Similarly, if we talk about the longitudes, and this is the prime meridian, which is the passing through the 0 degree longitude. So we have also make a separate note on that, that how many countries or which countries are the passing through these 0 degree latitudes. That's clear. So I think that these are the 5 and the 6 longitudes and latitudes and the countries are located on it. That is the quite important for the examinations point of view, because very often in the one-day examinations or even in the prelims examinations of the UPPC, such type of questions are asked often. So we have to understand it properly. Now just moving ahead, that is the behind the 0 degree latitudes, that is called prime meridian, there is international date line. So we have to understood it as well. So this is the prime meridian. This is the opposite line of the prime meridian, which is called the international date line, and it is the passing through the nearly about 180. But if you look it, then you can find it out that this is not the exactly the sharpened line like the 0 degree latitudes. This is basically the zigzag line. So question is that why this is the zigzag line? This is zigzag line because it should not be passing through any particular countries, because if international deadline will pass through any particular country, then there will be the two dates in the same country to avoid this problem. So international deadline is passing through those parts which must not be passing through the any countries. So if suppose that, for example, if this line will be the passing through like this, then basically it will divide the many islands, many countries, like this is here is the New Zealand, etc. So there will be the two dates. So how dates are determined here? Just we take one example. Suppose that कि यहाँ पे 20 तारीख है, क्योंकि जो तारीख होती है वो रात में यहाँ पर बदल जाती है, और यहाँ पर यदि 20 तारीख है यानी कि 20 डेट है, तो यहाँ पर कितनी तारीख रहेगी? तो 19 डेट रहेगी। अब यहाँ पे यदि 20 डेट है और यहाँ पर 19 डेट है, इट मीन्स कि यदि कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से यदि यहाँ पे कूद के जाता है, तो 20 तारीख में है यानी 20 डेट में है, कूद के यहाँ पर जाता है तो 19 में पहुंचेगा, तो उसको एक दिन और जीने को मिल जाएगा। तो यानी कि वो क्या करेगा, जब हम यहाँ से कूद करके यहाँ पर जा रहे हैं, जब हम ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, तो हमको 1 डे का क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है। सिमिलरली
यदि कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और कूद करके यदि यहाँ पर पहुंच रहा है, इसी लाइन को जस्ट क्रॉस कर रहा है, तो 19 टू 20 जब वो पहुंचेगा तो उसने तो अभी 19 तारीख जस्ट स्टार्ट हुई है और वो पूरा जी भी नहीं पाएगा कि कहाँ पहुंच जाएगा, तो वो 20 तारीख पर पहुंच जाएगा, 20 डेज पे पहुंच जाएगा। इट मीन्स दैट द डेट ऑफ 19 इज डिलीटेड फ्रॉम हिज लाइफ। So that's why it is said that if we move westward then we lose 1 day। यदि हम वेस्टवर्ड में यदि हम मूव करते हैं तो हमारा 1 डे लॉस हो जाता है। So this is all about the basics of the geography, which might be the helpful in the coming lectures as well. So just now coming to the core topic of this chapter, that is India size and locations. But before going into the size, first we will study about the location of India, how India is located, or particularly any other countries is located on the globe. So to locate any country, we have two things: latitudes एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूड्स। यदि हमारे पास ये दो डेटा अवेलेबल हैं, लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का, तो हम किसी भी कंट्री को ग्लोब पे लोकेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? जैसे इंडिया के केस में यदि हम लैटिट्यूड्स देखें तो इंडिया का जो मेन लैंड का जो लैटिट्यूड्स है वो है 8 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड्स की यदि हम बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर्टिकुलर कंट्री दैट इज इंडिया का ये हमको पता है। अब हमको यदि इसको ग्लोब पर लोकेट करना होगा तो हम कैसे लोकेट करेंगे? यहाँ पर हमको लोकेट ये करना है कि यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि ये है एन और ये है यन। तो कीप रिमेंबर, ये जो यन बता रहा है, यन डायरेक्शन नहीं बता रहा, यन ये बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स है वो किस हेमिस्फीयर में है। ये यहाँ से क्लियर हो गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और यदि हम पर्टिकुलरली यदि हम इस फिगर को देखें तो ये है लैटिट्यूड, दो यहाँ से पास हो रहा है, और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये हमको दो चीज क्लियर है। अब जैसे कि हमने बताया है कि इक्वेटर ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वन इज ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये हमारा हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ का ये यन और ये यन बता रहा है कि इंडिया इस फेज में नहीं है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में तो नहीं है। अब दूसरा यदि हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो लॉन्गिट्यूड देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ई है, यानी कि इंडिया कहाँ पर है? तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन आल्सो डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू हेमिस्फीयर। वन इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। so this is given here east and east, it means that India does not lie in these parts। तो यदि हम इसको फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है? तो यहाँ से लेकर के और यहाँ पर ये लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल हमने हेमिस्फीयर को फाइंड आउट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंट्री किस पर्टिकुलर क्वार्टर में लोकेटेड है। जैसे कि इंडिया के केस में देखेंगे तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ये हमने यहाँ पे इससे हमने पता कर लिया। अब हमको क्या करना है कि जो 8 डिग्री 4 मिनट है और ये 37 डिग्री 6 मिनट है, अब इसको हमको एग्जैक्टली लोकेट करना है। तो यदि फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 15 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। जस्ट इमेजिन दैट कि यदि ये 15 डिग्री है तो इसका 8 डिग्री समथिंग यहाँ पर आएगा। 8 डिग्री हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, मैं एक दूसरा कलर यूज कर दे रहा हूँ। सपोज दैट तो दिस इज ये 8 डिग्री। तो 8 डिग्री कहाँ से पास हो रहा है? तो ये हमने मान लिया कि 8 डिग्री ये हो गया, ये डिग्री ये है और उसके ऊपर दिया गया 37 डिग्री। तो 37 इट मीन्स दैट कि ये 30 डिग्री है और 37 मान लिया कि यहाँ पर समवेयर होगा। अब ये हमारा इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये हमारा क्लियर हो गया कि इंडिया इसके नीचे है और इसके ऊपर है। ये दो चीज हमको यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स की तरफ। तो लॉन्गिट्यूड में दिया गया 68 डिग्री 7 मिनट है, यहाँ पे दिया गया है 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे 70 डिग्री दिया गया है। तो जब हम 68 जब 68 डिग्री जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए लाइन कुछ ऐसे आएगी यहाँ पे करते हुए, और ये इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये इसको टच करेगी। ठीक, ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। और उसी तरह से यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ, तो 97 क्या होगा? तो समथिंग लाइक यहाँ से पास होगी ये, और ये हमारा यहाँ से लाइन निकल जाएगी।
अब यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं तो इंडिया का जो लोकेशन है ग्लोब पे वो ये 4 लाइन हमने जो ड्रा किया हुआ, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हो गए और ये जो लैटिट्यूड्स हो गया, इसके बीच में है इंडिया क्या है तो ये लोकेटेड है। इस प्रकार से यदि किसी भी कंट्री का यदि लैटिट्यूड्स हमको पता हो और लॉन्गिट्यूड्स पता हो तो उसके बेस पे हम किसी भी कंट्री को ग्लोब पर एग्जैक्टली हम लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि एक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के बीचों बीच से पास होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये है 15 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो बीच में ये समवेयर यहाँ से जो है ये पास होती है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करती है नियरली अबाउट 2 हाफ में। ठीक, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि किसी भी कंट्री का लोकेशन हम किसी भी ग्लोब पे कैसे कर सकते हैं। तो हम लैटिट्यूड के माध्यम से करेंगे और लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से करेंगे। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है कि जो बुक में ही दिया गया है कि 2004 में एक सुनामी आई थी और उस सुनामी में जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया था। तो अब हमको यहाँ पर देखना ये जरूरी है कि आखिर इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे। तो अभी ये आगे आ रहा है। इसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं कि इंडिया के साइज क्या है। ठीक, तो साइज के बारे में यदि हम देखें तो कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि इंडिया का साइज क्या है। तो अगर इंडिया के यदि हम एरिया की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ इंडिया, देन इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। In terms of the total geographical area, India is having only the 2.4% area. यदि हम टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो है 2.4%। और यदि हम पॉपुलेशन की बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड का इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, सो इंडिया इज हैविंग नियरली अबाउट द 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो दिस इज क्लियर। एंड यदि साइज की हम बात किए हैं और वर्ल्ड से यदि हम कंपेयर करेंगे तो सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है रसिया, जिसकी जो एरिया है वो 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आफ्टर दैट कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर उसके बाद हमारी कंट्री आती है इंडिया, जिसकी जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इफ वी कंपेयर Russia with the India, then the Russia's area is more than 5 times of India, यानी कि इंडिया से 5 गुना से भी ज्यादा जो एरिया है वो रसिया की है। ये यहाँ तक क्लियर। नाउ अब हमको ये देख लेना है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है। यदि हम इंडिया के लैंड बाउंड्री की यदि हम बात करेंगे तो इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी कंट्री ऐसी है जो इंडिया से के लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है और उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस ऑफन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। यदि हम इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। कितनी लग रही है तो 4096 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखेंगे तो चाइना की है 3488। आफ्टर दैट पाकिस्तान, उसके बाद देखिए फिर नेपाल की बाउंड्री लगती है। उसके बाद देखिए फिर म्यांमार की है और म्यांमार के बाद ये भूटान की है और भूटान के बाद किसकी लगती है तो अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री है जिसकी लैंड बाउंड्री भारत से सबसे ज्यादा लगी हुई है या मोस्ट लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। तो यानी कि जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की जो लैंड बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा में कितनी है तो 4096 पॉइंट ये 7 किलोमीटर है। और सबसे कम किसकी है तो वो है अफगानिस्तान की है और अफगानिस्तान की कितनी है तो 106 किलोमीटर है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो ये कंट्रीज का नाम दिया गया है तो जो उनकी लैंड बाउंड्री है वो इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका एक न्यूमेरिक्स बनता है, वो इस तरह से बनेगा कि सबसे जो बड़ी सबसे जो जिसकी लैंड बाउंड्री सबसे बड़ी है वो है बांग्लादेश। उसके बाद कौन आता है चाइना। उसके बाद कौन आता है पाकिस्तान। आफ्टर दैट नेपाल। और फिर उसके बाद आता है म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान।
अब इसको यदि हम नेमोनिक्स बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे एक नाम बन करके आता है जिसका नाम होता है बचपन MBA। तो इफ वी रिमेंबर इट इन दिस फॉर्म द बचपन MBA, देन वी कैन वेरी इजीली arrange the land boundary of India of the various countries in descending order. First one is Bangladesh, after that China, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan and Afghanistan. So this is all about it. And after that, the land boundary, there is one thing which is about coastal line. कोस्टल बाउंड्री और कोस्टल लाइन। तो यदि हम कोस्टल लाइन की बात करेंगे तो इंडिया के बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो कोस्ट पे लोकेटेड हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया की कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है। तो ये लेंथ अर्लियर थी 7516.6 किलोमीटर, बट इन द 2025 इट वाज द रिवाइज्ड एंड द रिवाइज्ड कोस्ट लाइन इज 11,099 किलोमीटर। This is the revised. Now this is the quite important because it's changed. अब ये बदल गया तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन सी स्टेट ऐसे हैं जिनकी किस किस नंबर पर हैं। ठीक, जैसे अगर यहाँ पर यदि हम देखें तो गुजरात स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन थी, वो 1214.7 किलोमीटर था ये पहले, और बाद में देखिए अब ये चेंज होकर के हो गया है 2340.62 किलोमीटर। उसी तरह से तमिलनाडु का हम ये देखेंगे तो 906.9 था और आंध्र प्रदेश का 973.7 था। तो यदि हम ओल्ड कोस्ट लाइन देखेंगे तो नंबर 1 पे गुजरात होता है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु आता है। लेकिन यदि हम रिवाइज्ड कोस्ट लाइन देखेंगे तो नंबर 1 पे तो गुजरात ही है, बट नंबर 2 पे तमिलनाडु आता है और नंबर 3 पर आता है आंध्र प्रदेश। ये जो डेटा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, चाहे वो PCS का हो, चाहे कोई वनडे एग्जामिनेशन हो, यहाँ से फैक्ट से पूछे जा सकते हैं। सबसे जो कम कोस्ट लाइन है वो है पुदुचेरी की है 42.65 किलोमीटर। So if we talk about if you talk about the size of India, then here we have covered it comprehensively, area wise, land boundary wise and coastal wise as well. Now one thing is left that is quite important, that if we talk about the length and the breadth of our country, then how it is measured, etc., it will be covered here. So one thing is that if we talk about the breadth of the India from the westernmost part to the easternmost part, so this is about 2933 kilometer. And if we talk about the north to south length, then this is the 3214 kilometer from here, from southernmost point to the northernmost point. Now here question is that this is the southernmost point of the mainland, which is called the Kanyakumari. And this is the northernmost point of the mainland, and this is called Indira Col. But this is not the southernmost point of Indian Union. Southernmost point of Indian Union is here in Andaman Nicobar Island, and this is the southernmost point, and this is the latitude is the 6.66 degree 45 minute, and this point is called Indira Point, which was submerged in 2004 tsunami, as I have discussed it earlier. And this is the westernmost point of the India, and this is the Guhar Moti. Similarly, this is the easternmost part, and easternmost part is called Kibuthu. So these are the four most eastern, western, northern, southern part of India. So many times these questions are asked in the one-day examinations, but even this is very irrelevant right now for the UPSC or EPPSC. But one thing here we can see that one dotted line. First one is this is here dotted line. Tropic of Cancer is also passing through the India. Now question is often asked that through how many states or through which states Tropic of Cancer is passing. यानी कि इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कितने स्टेट से पास होती है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. These are the 8 states through which Tropic of Cancer passing through. ये हमको याद रखना है, ये मेन एग्जाम से पूछ लिया जाता है. दूसरा ये है कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये क्या होता है और ये किस स्टेट से पास होता है. तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. फर्स्ट क्वेश्चन. So just try to understand it that the why there is standard meridian of India. So just imagine this is the figure, this is the globe, and in this globe this is the 0° longitudes and this is the 0° latitudes. This is clear. And as we know that our earth rotates 24 hours in 24 hours 360°. हमारी जो अर्थ है वो एक दिन में यानी 24 आवर्स में एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेती है. इसका मतलब ये हुआ कि 24 आवर में वो 350° घूम जाएगी. तो एक घंटे में कितना घूमेगी ये, इसको हम इसे डिवाइड कर लेंगे. 360 बाई ये हो जाएगा 24 और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15. इट मीन्स दैट इंडिया रोटेट्स इन 1 आवर ओनली 15°. यानी कि एक घंटे में केवल 15 मिनट घूमती है. इट मीन्स दैट 2 आवर में कितना घूमेगी, तो 30 मिनट घूमेगी. Now just imagine here is India's longitude is the 68° approximately and here this is 97. तो 68° से लेकर के और 97 तक यदि हम रेंज देखेंगे तो नियरली अबाउट 30° होगा. एग्जैक्टली तो 39° है बट 29 है बट रफली ये हो जाएगा 30°. तो 30° इन द सेंस कि अब यहाँ से लेकर के यहाँ का जो टाइम होगा और यहाँ का जो टाइम होगा, इन दोनों टाइम को यदि हम यहाँ से मेजर करते, प्राइम मेरिडियन यदि हम मेजर करते तो इसमें 2 आवर का डिफरेंस होता. वो कैसे डिफरेंस होता यहाँ पे हम देख लेते हैं. जैसे कि ये है 0° लॉन्गिट्यूड है, ये हम मान लिए कि ये यहाँ पे ये 30° का लॉन्गिट्यूड है, ये 60° का लॉन्गिट्यूड है और ये 90° का लॉन्गिट्यूड है. अब ये लॉन्गिट्यूड 90° का है और जस्ट यदि हम ये इमेजिन करें कि यहाँ पे सुबह का यदि 6 बज रहा होगा तो यहाँ पे उसी टाइम पर यहाँ पर कितना बज रहा होगा, तो यहाँ पर बजेगा, इन दोनों के बीच में 30° का अंतर है तो मतलब कि टाइम में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा. तो यहाँ पे 6 बज रहा है तो यहाँ पे बजेगा 4 o'clock और यहाँ पर अगेन 30° का डिफरेंस है तो यहाँ पे बज जाएगा ये 2 o'clock और यहाँ पर बजेगा क्या, 12 o'clock. इट मीन्स दैट कि यदि यहाँ पे सपोज दैट सुबह का यदि 4 बज रहा होगा तो यहाँ पे कितना बजेगा, तो फिर 6 बजेंगे. अब प्रॉब्लम इससे ये होगी, जस्ट इमेजिन दैट इन द मॉर्निंग यदि यहाँ पे 6 बज रहा है और यहाँ पे यदि 4 o'clock है और कोई पर्सन यदि फ्लाइट से यहाँ पर पहुंच रहा है और 1 घंटे में पहुंच जा रहा है, इट मीन्स दैट इन हिज वॉच यानी कि उससे घड़ी में कितना बजेगा, तो ये 5 बजेगा और यहाँ का जो एयरपोर्ट होगा वहां पे घड़ी में कितना बजेगा, तो 7. सिमिलरली यदि कोई पर्सन यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से उड़ करके यहाँ पे जा रहा है बाई प्लेन गुजरात, जो उसकी घड़ी होगी उसमें 7 o'clock दिखाएगा और जो एयरपोर्ट की घड़ी होगी वहां पे 5 o'clock दिखाएगा. इट मीन्स दैट देयर इज डिस्क्रिपेंसीज इन द टाइम ओवर हियर. So just to sort out this problem, we are not measuring the time from the prime meridian. We have made a different the solutions of it, that is standard meridian of India. But question is that the why standard meridian of India is passing through only 82° 30 minutes. So now just solve this out. I have just told you there is total variations of longitudes to the 29°. So we have just divided it into the two parts. So if we divide it into two parts, then the 29 upon 2 it will become 14.5. 14.5 it means that if we calculate from the 68°, इसको हम कैलकुलेट करें 68° से और 14.5 को यदि हम ऐड करेंगे तो ये जो नंबर आएगा वो आएगा 82.5. इट मीन्स कि ये हो जाएगा 82° 30 मिनट और ये हो जाएगा ईस्ट. यही कारण है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो 82° वो 30 मिनट से पास होता है. अब ये क्लियर हो गया है. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अब 82° 30 मिनट से पास होता है, सो हमारी टाइमिंग क्या होती है प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में. तो 82°, 82.5 आया हुआ है तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 1 आवर से यानी कि 15° से,
तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 5.5। इट मीन्स दैट कि जो हमारी टाइमिंग है वो प्राइम मेरिडियन से कितना घंटे आगे है, तो 5 आवर 30 मिनट। इतनी जो टाइम है वो हमारी प्राइम मेरिडियन से आगे है। तो यहाँ पर हमने ये भी सीख लिया कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसको 82 डिग्री 30 मिनट क्यों रखा हुआ है, दैट्स क्लियर। एंड वी हैव आल्सो क्लियर दैट द वाई टाइम ऑफ इंडिया दैट इज अहेड ऑफ द प्राइम मेरिडियन दैट इज 5 आवर 30 मिनट्स। तो इसको भी हमने क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये किन किन स्टेट से पास होता है इंडिया में। जस्ट मेक अ सेपरेट नोट ऑन इट एंड इंक्लूड इट इनटू योर map. So this is all about standard meridian of India. Now the last topic of this chapter is princely states and provincial states. So princely state is ruled directly by the hereditary rulers, and provincial states were ruled by the British officials appointed by the Viceroy. So there is only the one basic difference in the princely state and the provincial state, and there is nothing more to know about it. And now one thing is that in this figure, if you can look into it, then there is also the some neighboring countries of India as well. This is the Sri Lanka. Sri Lanka is the neighboring country, but this is the maritime neighboring country of India because its boundary does not lie with India. Similarly, here is the Maldives, and the Maldives is also the maritime neighboring country of India. So overall, this is all about the India size and locations. So this is all. Thank you. Have a nice day.